Good morning, class. So, after a long time, welcome to this lecture of DBMS CSA2. The unit we are studying was DBMS, that is Database Management System. So, we are studying in it the relational database. Now, this is the third chapter, that is Entity Relationship Modeling. So, we have seen up till now. We will revise in short and we will continue for the next thing. So, basically, database designing, there are three things. There is one is schema. Then there is one program that accesses the data, and there must be some security element. To design a database, you must first need to identify the need of the users, correct the requirement, then prepare a textual representation, then select the concept of database, then you have to choose the appropriate model, then transform the requirement into conceptual schema. So here the actual work starts. That is, you are choosing a specific data model and you are conceptually preparing a database. Then specify functional requirements. Then abstract data model design you have to do, that is logical design, and then physical design. Physical means forms, index. Physical like means just like a cupboard where you are going to place what things, and logically means how you are going to map it. Suppose if you open one thing, how you are going to access, what are the relations and so on. Then there are certain issues that needs to be overcome, and because of that we use the databases, that is redundancy, incompleteness. We have already seen them: atomicity, consistency, isolation, durability, and so on. Now, what is entity relationship modeling? We already know entity means objects or items of interest. Anything that is having an existence, that is called as entity. Attributes means its characteristics, and relationship means the links between those two entities. Now, here you can see ER diagram. ER diagram is entity relationship diagram. So, it is actually representing a conceptual schema which maps, that means interacts. For example, we have seen here this one diagram. There is one lecturer, and so lecture is an entity, student is an entity, module is an entity. Now here you can see the entity student. It has certain characteristics like name, course ID. Then again there is a one entity, that is module. Now you can see the relationship between these entities. Lecturer, this particular diamond shape indicates the relationship, that is lecturer tutors student. Then student studies specific modules, and these students have certain characteristics. So this is basically an ER diagram, that is entity relationship diagram. In this we have one entity, two entity, three entity. Now the relationship between this and this entity, it is tutors. Relationship between lecturer and student is the lecturer tutors the student. Relationship between student and module is student studies the module. And the name, ID, and course, these are the specific attributes or the characteristics of a student. Now entity is anything you know already. So here you can see it has certain properties. This is one entity, it is having this much properties or characteristic. This is another entity. Now entity set, it is a set of entity which has same properties or attributes. Students and student, these are two different entities. Student, but they are having same attribute. An entity set is a set of entities of the same type. Example, all persons having accounts at bank. जैसे सभी स्टूडेंट्स है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की जो आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट और ये सभी स्टूडेंट्स, तो इन सभी स्टूडेंट्स की जो एट्रीब्यूट्स में कोर्स आईडी और नेम, कोर्स आईडी और नेम कॉमन है, तो ये फिर हो गया एंटिटी सेट जिसमें कुछ कॉमन है. ठीक है. अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखे तो एट्रीब्यूट्स की जो रहती, एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ है, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ मतलब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे अब यहाँ पे और उसकी एक वैल्यू रहती, जैसे अब ये हो गया एंटिटी स्टूडेंट, इसके एट्रीब्यूट है कोर्स, आईडी और कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो है इसकी वैल्यू, आईडी की वैल्यू 25, कोर्स की वैल्यू मेक और नेम की वैल्यू राम. तो जैसे कोई स्टूडेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी कि उसका कुछ नाम रहेगा, कुछ कोर्स रहेगा, कुछ आईडी. तो अब उसके नाम के अंदर जो रहेंगी वो रहेंगी वैल्यू. समझ में आ रहा ना. एट्रीब्यूट्स, एंटिटी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एट्रीब्यूट्स, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वैल्यूज़. अब यहाँ पे देखो, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड और टैग इन अ डेटाबेस, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज, ये होगी उसकी वैल्यूज. अ वैल्यू इज अ लिमिट और इंडिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. एस्टिमेट द मॉनिटरी वर्थ मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है. अब ये वैल्यू के टाइप्स भी हमने देखे थे, कंपोजिट, सिंगल, मल्टीपल, एट्रीब्यूटेड, डिराइव्ड. जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये जो डिराइव्ड, आपने अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताया तो उस पर से हम एज निकाल सकते हैं, तो ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट. आपका फ़ोन नंबर में एक से ज़्यादा नंबर्स आएंगे, 10 नंबर्स. मोबाइल नंबर की बात करें तो एसटीडी की और कुछ आएंगे, लैंडलाइन नंबर की, तो हो गया मल्टी वैल्यूड. सिंगल वैल्यू मतलब जैसे आपका क्लासरूम नंबर एक ही होंगे, A1, A2, A3. कंपोजिट जैसे आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट.
सिंपल एट्रीब्यूट मतलब आपका सीधा सीधा रोल नंबर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स थे, उसमें थे सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर हमने एक ईआर डायग्राम देखा था, इसमें एक एंटिटी है कस्टमर। अब उसके बाद में उसको देखो कितने सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कस्टमर का सपोज एक कस्टमर आईडी है, एक उसका फ़ोन नंबर है, एक उसका डेट ऑफ बर्थ है, एक उसका एज है, एक उसका नेम है। अब नेम में भी देखो, नेम ऐसा एट्रीब्यूट है कि नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, उसमें क्या क्या है, लास्ट नेम, मिडल नेम और फर्स्ट नेम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इस पर से आपको दूसरे एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर ये मल्टी वैल्यूड, एक से ज़्यादा वैल्यू, एक से ज़्यादा नंबर से। एड्रेस, अब एड्रेस में भी देखो, स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, स्ट्रीट में नंबर, स्ट्रीट नेम, ये तो ये सब हो गए पूरे के पूरे कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड। तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स आप हो सकते हैं, मतलब इतने सारे एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमने देखा एक ही एंटिटी है कस्टमर, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, फ़ोन नंबर, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नेम, ये 5 उसके एट्रीब्यूट हो गए। अब ये नेम एट्रीब्यूट 3 चीज़ों से बना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, तो ये हो गया कंपोजिट। फ़ोन नंबर जो बना है, फ़ोन नंबर कैसे बना है, फ़ोन नंबर में बहुत सारे वैल्यूज है, 10 या फिर एसटीडी नंबर, तो वो हो गया मल्टी वैलिड। डेट ऑफ बर्थ एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब उस पर से आपको एज मिला, तो वो हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। और ये हो गया, ये फिर से हो गया कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड। कंपोजिट जैसे एड्रेस में काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ये फिर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, मल्टी वैल्यूड का रिप्रेजेंटेशन है, वो आप डबल लाइन से करते हो। आई शो यू फर्दर, डिराइव्ड का आप एक डॉटेड लाइन से करते हो कि इस पर से आपको एज मिला एंड लाइकवाइज। उसके बाद में यहाँ पर देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट अपने समझना, जैसे यहाँ पर एक एंटिटी कस्टमर, एक एंटिटी अकाउंट, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, डिपॉजिटर। मतलब कस्टमर क्या कर रहा, कस्टमर डिपॉजिट करता अकाउंट में कुछ तो भी पैसे। कस्टमर का स्पेसिफिक आईडी है, स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक स्ट्रीट है, स्पेसिफिक सिटी है। कस्टमर की ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर उसके एट्रीब्यूट्स है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसका एक आईडी है, उसका नेम, उसका स्ट्रीट, उसका सिटी। अकाउंट के आईडी है, अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैलेंस और अकाउंट नंबर। अब उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है, दैट इज एक्सेस डेट। तो ये एक्सेस डेट किससे रिलेटेड है, डिपॉजिटर से। मतलब जब आप कोई एक्टिविटी करोगे, इनके और इनके बीच के रिलेशन है डिपॉजिट करता, लेकिन जिस दिन डिपॉजिट करता वो डेट स्पेसिफिक, वो होगी एक्सेस डेट। तो वो होगी ये जो इसकी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। मैपिंग कार्डिनलिटीज मतलब क्या होता है कि एंटिटी की एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, 1 to 1 एंड सो ऑन। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट मतलब इट स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। एक सिंपल सा देखो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो लाइन दिखा है 1 to 1, 1 to many, many to 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि टोटल और मैंडेटरी पार्टिसिपेशन मतलब क्या था। अब ये सपोज एक है आर मतलब रिलेशन और ई मतलब एंटिटी। अब इनके बीच में लाइन दिखाई है, तो ये मतलब क्या है, पार्शियल या ऑप्शनल पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर ये 2 लाइन्स इनके बीच में दिखाई है, यहाँ पर ये 2 लाइन्स दिखा रही है, तो ये क्या है, टोटल और मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। पार्टिसिपेशन कंसर्न्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप। इट स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। जैसे यहाँ पर जो है एक एंटिटी कंप्लीटली दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करती। अब यहाँ पर देखो मैनेजेस, एक है एम्प्लॉय, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक है एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय में, और देखो डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय और ये डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय क्या करता है, डिपार्टमेंट को मैनेज करता। एम्प्लॉय क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे। लेकिन आप मैनेज के सामने दे सकते हैं एक कंप्लीटली डिपेंडेंट है। यहाँ पे 2 लाइन्स दिखे हैं, मतलब ये क्या है, टोटल और मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। मतलब ये स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट है वो इसके मैनेजमेंट पर ही चलता है, वो इस एम पर भी डिपेंडेंट है कंप्लीटली। तो इट इन्वॉल्व्स टोटल पार्टिसिपेशन। और ये यहाँ पर एम्प्लॉय और ये मैनेज, इसके बीच में सिर्फ सिंगल लाइन है। इसका मतलब कि एम्प्लॉय सिर्फ उसको मैनेज कर रहा, वो डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट कंप्लीटली वन वे एम्प्लॉय पर ही डिपेंडेंट है। तो ये हो गया टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है। अब ये हमको ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, टोटल या पार्शियल पार्टिसिपेशन की। तो मैं आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगा वो एग्जाम्पल से अपने ख्याल में आएगा। इन दैट स्पेसिफिक एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। वो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है, या तो कंप्लीट पार्टिसिपेशन होगा या तो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। उसका मतलब क्या होगा कि वो उस पर डिपेंड करता। जैसे जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के बिना नहीं चल सकता। ये एम्प्लॉय क्या है, ये डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा, तो एम्प्लॉय के बिना डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। मतलब डिपार्टमेंट कंप्लीट डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे।
लेकिन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बिना चल सकता है कि यस, एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, वो और भी डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है और भी कुछ कर सकता है, तो एम्प्लॉय चल सकता है डिपार्टमेंट के बिना। तो मतलब एम्प्लॉय डिपेंडेंट नहीं है डिपार्टमेंट पर, वो पार्शियल डिपेंडेंट है कि ठीक है वो डिपार्टमेंट में कुछ काम वो करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया था कंप्लीट पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब उसके बाद में जो आता है वो आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है स्पेसिफाइज नंबर ऑफ रिलेशंस और इंस्टेंसेस दैट कैन एंटिटी पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल दिखा था, विथ वन एग्जांपल विल स्टडी इट। सपोज ये यहाँ पर हमने बात करी एक कस्टमर की और एक अकाउंट की, तो सबसे पहले अपन लेते मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी का जो रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, उसमें एरो नहीं रहता। जैसे अब ये जो रिलेशनशिप है, देखो ये हो गया, एक एंटिटी होगी सपोज यहाँ पर अकाउंट और एक एंटिटी होगी कस्टमर, इनके बीच में रिलेशन क्या है, डिपॉजिटर। अब हम इसको ऐसा करते, ऐसा पकड़ के चलते हैं कि सपोज ये अकाउंट की जगह पे हम लोग इसको कंसिडर करते सपोज एक टाइप का, इसका नाम है लोन। सपोज एक एंटिटी है लोन और एक एंटिटी है कस्टमर, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये डिपॉजिट की जगह हम लोग करते बोरोवर, ठीक है, बोरोस। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो इसको, अ कस्टमर बोरोस लोन, ये लोन अकाउंट है, ठीक है ना। ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, ये हो गया लोन अकाउंट, और ये क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा या फिर बोरो भी कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब कस्टमर है सपोज ये सी, और ये या तो बोरो कर रहा और ये अकाउंट हो गया सपोज एक लोन अकाउंट। अब इनके बीच में आप जो देखो तो रिलेशनशिप कैसी है, ये यहाँ पर भी एरो नहीं है, यहाँ पर भी एरो नहीं है, तो ये मैनी टू मैनी हो गया। मैनी टू मैनी में क्या रहता है, कहीं पर भी एरो नहीं रहता। अभी एक पेज पर होना चाहिए, मैं यहाँ पे दिखाता आपको, यू विल सी इट हियर। देखो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं मैनी टू मैनी, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इधर भी एरो नहीं है, इधर भी एरो नहीं है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप होगी, मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब हम लोग समझते हैं, इस पर समझना बहुत आसान जाएगा। जैसे हमको पता है ये कौन सा अकाउंट है, हमारा लोन अकाउंट है, यहाँ पे डिपॉजिट भी करता, बोरो भी करता, और ये हमारा कस्टमर है। अब मैनी टू मैनी मतलब क्या होगा, सपोज एक कस्टमर है और एक लोन है, तो ये लोन का एक अकाउंट नंबर होगा, राइट, लोन अकाउंट नंबर। सपोज वो लोन अकाउंट नंबर है L1 और कस्टमर का कुछ तो भी आईडी है सपोज C1। तो एक कस्टमर बहुत सारे लोन ले सकता, तो उसका दूसरा लोन उसने लिया तो उसका हो गया L2, तीसरा लोन लिया L3, चौथा लोन लिया L4। तो एक कस्टमर्स ने इतने सारे लोन्स लिया, तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी, मैनी। यानी एक कस्टमर है सपोज इसका आईडी है C1, इसने 1 2 3 4 लोन लिए, एक लोन हो गया सपोज L1, एक लोन L2, एक लोन L3, एक लोन L4। अब ये L1, L2, L3, L4 ये लोन के नंबर्स है। जैसे सपोज आपने एक पर्सनल लोन लिया तो आपका हो गया PL1, आपने एक कार लोन लिया तो CL2, एक आपने हाउस लोन लिया तो HL3। तो एक आदमी कितने भी सारे लोन ले सक रहा, तो इसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर के काफ़ी सारे लोन अकाउंट नंबर हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी, मैनी। कस्टमर एक ही है लेकिन इसके जो है लोन अकाउंट नंबर कई सारे हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप कैसी होगी, मैनी। अब हमने रिलेशनशिप समझ लिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी बैंक एक ही कस्टमर को कई सारे लोन्स एक साथ दे रही है। वो उसको पर्सनल लोन भी दे रही है, कार लोन भी दे रही है, हाउसिंग लोन भी दे रही है, मॉर्गेज लोन भी दे रही है, बिजनेस लोन भी दे रही है, एंड XYZ। तो एक ही आदमी को, एक ही कस्टमर को वो काफ़ी सारे लोन्स बैंक दे रही है। तो ये होगी रिलेशनशिप यहाँ पे मैनी। लेकिन अब हमने देखा था कि हम जो बात कर रहे थे वो दोनों साइड में मैनी है, मतलब मैनी टू मैनी, यानी इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन है तो सिर्फ ऐसा है कि जैसे यहाँ पर मैनी हो सकता, मतलब एक कस्टमर के मैनी लोन अकाउंट नंबर हो सकते कि उसको बहुत सारे लोन मिल रहे हैं, वैसे ही एक लोन अकाउंट नंबर के काफ़ी सारे कस्टमर आईडी भी हो सकते हैं। जैसे C1, C2, C3 लोन सब सिर्फ एक ही लोन है, बिजनेस लोन। लोन कौन सा है, एक ही है, एक ही आईडी है BL1, लेकिन BL1 के काफ़ी सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। ये कैसा होगा, जैसे सपोज हमने 10 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, और हमने क्या किया, ये 10 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और फिर हमने लोन लिया, तो हम सभी के सभी बोरोवर हो गए। तो हम बोरोवर कितने हो गए, C1 से लेके C10 तक, तो हमारे सबके कस्टमर आईडी है C1, C2, C3, C4। लेकिन लोन तो हमने एक ही लिया जिसका सपोज अकाउंट नंबर है BL1। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नंबरिंग, ये बैंक के अकाउंट नंबर है, तो ये अकाउंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना।
तो वो हिसाब से सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि BL इट बिकम्स ईजियर, बिजनेस लोन। तो ये आपने लिया था एक बिजनेस लोन 1, लेकिन वो बिजनेस लोन से कस्टमर C1, कस्टमर C2, कस्टमर C3, C4, C5 एंड सो ऑन, सभी से उसका रिलेशन से, मतलब सभी ने वो लोन लिया हुआ है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, एक ये जो लोन अकाउंट है इसका इन सबके साथ रिलेशनशिप है। तो ये कैसी रिलेशनशिप हो गई, मैनी, एक की कईयों के साथ तो हो गई मैनी। सेम वेज में एक ही कस्टमर ने कई सारे लोन लिया तो वो भी हो गई थी इसके साथ मैनी। तो ये हो गया एग्जाम्पल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। आए समझ में, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमारे क्लियर कट समझ में आ गया कि एक ही कस्टमर कई सारे लोन ले सकता और एक ही लोन कई सारे कस्टमर्स को हम दे सकते। मतलब एक कस्टमर ने 10 लोन ले लिया तो कस्टमर और लोन अकाउंट नंबर के बीच में मैनी वाली रिलेशनशिप हो गई। वैसे ही एक ही लोन अकाउंट नंबर 10 कस्टमर्स का भी है, क्यों, क्योंकि वो जॉइंट में ले लिए तो वो अकाउंट लोन अकाउंट नंबर और बहुत सारे कस्टमर्स में रिलेशनशिप हो गई तो वो भी मैनी हो गई। तो ये रिलेशनशिप हो गया मैनी टू मैनी। इसमें दोनों भी साइड में एरो नहीं दिखाया जाता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा था है? सबसे पहले मैं एक और बात बताऊँ, यहाँ पे आप समझ लो कि जब हम रिलेशनशिप इंडिकेट करते तो जिस साइड में 1 लिखा रहा, जैसे अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, मैनी टू 1, 1 इधर है तो एरो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। इधर कैसी है, 1 टू मैनी, 1 पहले तो एरो किस तरफ आएंगे, रिलेशन के इस तरफ आएगा। ये कैसी है, 1 टू 1 तो एरो इधर आएगा, एरो इधर आएगा। मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेंगे लाइक दिस कि रिलेशनशिप आपकी कैसी है। अगर सपोज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो दोनों साइड में भी एरो नहीं है। मैनी टू 1 है तो जहां पर 1 है वो साइड में एरो आएगा उस एंटिटी को लग के उस तरफ। इधर 1 है मतलब मैनी पहले 1 इधर है तो एरो यहां पर आएगा। इसमें क्या है कि 1 इधर है, 1 टू मैनी है तो एरो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1 टू मैनी, और दोनों साइड में है तो ये हो जाएगा 1 टू 1। ठीक है, तो अब अपन पहले अपन देखा मैनी टू मैनी, अब अपन देखते हैं उसके बाद में 1 टू मैनी, 1 टू मैनी। अब 1 टू मैनी मतलब ये एरो इस तरफ है, ऐसा हो जाएगा। अब रिलेशन जो हमने शो किया वो इस तरह से शो किया कि एक ही साइड में हमने एरो दिखाया। अब क्या रिलेशनशिप होगी, 1 टू मैनी। अब ये इस पर से तो हमारे समझ में आता कि इस तरह से हम शो करते रिलेशनशिप। अगर ऐसे एरो दिख रहा तो एक अकाउंट है कस्टमर, एक है लोन अकाउंट, उसके बीच में कुछ तो भी रिलेशन है, डिपॉजिट या बोरोवर, और उनकी रिलेशनशिप क्या है, 1 टू मैनी या फिर मैनी टू 1। अगर इधर से आप बोलोगे हमेशा तो 1 टू मैनी, तो 1 यहां पर आ गया। अब इसका मतलब देखते ये 1 टू मैनी मतलब क्या होगा कि लोन अकाउंट आपका जो है, कस्टमर आईडी आपका एक ही है, लेकिन इसने क्या किया, इसने काफ़ी सारे लोन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक कस्टमर ने बहुत सारे लोन ले लिए, जैसे उसने कार लोन लिया, हाउस लोन लिया, होम लोन लिया, XYZ ले लिया, बहुत सारे लोन ले लिया। तो ये रिलेशनशिप कैसी हो गई, यहाँ से हो गई ये मैनी, मतलब इधर आ गया मैनी, इधर काफ़ी सारे रिलेशनशिप थे, लेकिन एक लोन अकाउंट नंबर पे कई सारे कस्टमर्स ऐड नहीं हुए। मतलब यहाँ पर एक लोन अकाउंट अगर नंबर है L1 तो उसके लिए एक ही कस्टमर आईडी रहेगा C1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये पैरेलली ग्रुप लोन्स नहीं देते। ये अगर कस्टमर ने 10 कस्टमर मिलकर एक बिजनेस शुरू किया तो ये बोलेंगे नहीं 10 कस्टमर को अलग अलग लोन लेना पड़ेगा, अलग अलग बिजनेस लोन, हम पूरे ग्रुप को लोन नहीं देते। तो ये रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा यहाँ पे, मैनी टू 1, ये सिर्फ हो जाएगा मैनी टू 1। और इधर क्या हो गया था, 1 टू मैनी, इधर क्या हो गया था, 1 टू मैनी। मतलब एक कस्टमर कई तरह के लोन ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप के लोन्स। तो जब वो अलग अलग लोन लेंगे तो उसके अलग अलग लोन नंबर आएंगे, तो उन लोन नंबर और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप है, 1 टू मैनी। लेकिन एक अगर लोन है सपोज बिजनेस लोन BL1 तो वो एक ही कस्टमर आईडी रहेगा उसका, वो एक ही कस्टमर को देंगे, वो ग्रुप को लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब वो पैरेलल लोन्स नहीं देंगे ग्रुप को। तो वो रिलेशनशिप कैसी हो जाएंगी, मैनी टू 1। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी, 1 टू मैनी। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, दिस आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। अब उसके बाद में आता, ये देखिए था हमने 1 टू मैनी, सेम वेज में मैनी टू 1। मैनी टू 1 मतलब अब इधर अपन ने क्या कि यहां पर एरो दिखा दिया मैनी टू 1। अब इसने क्या किया,
ये कई सारे कस्टमर ने मिलके क्या किया, लोन ले लिया, लेकिन ये यहाँ पर एक ही लोन अकाउंट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेंगे बहुत सारे कस्टमर, मतलब इन्होंने बिजनेस लोन लिया सभी ने, तो इनको यहाँ पर एक लोन अकाउंट मिल गया BL1। अब यहाँ पे कस्टमर्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे देखो ये 1, ये 2, ये 3, तो इन्होंने एक लोन ले लिया BL1 और एक कस्टमर हो गए C1, C2, C3। तो इन्होंने लोन तो ले लिया। अब ये रिलेशनशिप कैसी होगी, यहाँ पर हमने एरो दिखाया ऑन दिस साइड, हियर इट इज शोन, तो ये होगी मैनी टू वन, मैनी टू वन, मतलब कस्टमर आईडी कई सारे हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, C1, C2, C3, और उन्होंने एक लोन लिया। लोन कौन सा लिया, BL1। लेकिन ये जो एक लोन अकाउंट नंबर है, इनका लोन अकाउंट नंबर एक ही रहेगा, कॉमन ही रहेगा, कस्टमर्स कितने भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप कैसी होगी, मैनी टू वन। लेकिन ये जो एक लोन अकाउंट नंबर है, ये कई सारे कस्टमर्स का हो सकता है, C1, C2, C3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 to many। तो इधर से आ गया मैनी टू वन, इधर से आ गया 1 to many। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, वो पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करते, वो प्रोवाइड करेंगे पूरे के पूरे ग्रुप को लोन। जैसे इसने क्या किया, पूरे ग्रुप को लोन दे दिया, बिजनेस लोन। तो एक ही लोन अकाउंट नंबर का कई सारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन हो सकता, समझ में आ रहा, मतलब लेकिन एक ही कस्टमर्स का, लेकिन एक कस्टमर का एक से ज़्यादा लोन अकाउंट नंबर नहीं हो सकता। मतलब वो क्या करेंगे, वो आपको एक ही तरह का लोन देंगे। अगर आपने 10 लोग मिलके एक बार बिजनेस लोन ले लिया, सपोज आपने C1 से लेके C10 तक ऐसे कई सारे थे, और आपने एक लोन ले लिया BL1 बिजनेस लोन, तो अब आपको क्या करेंगे, दूसरा लोन कार लोन नहीं देंगे, मतलब वो एक आदमी को एक ही लोन देंगे। 1 person विल गेट ओनली 1 काइंड ऑफ लोन। हाँ, ग्रुप लोन आपको मिल सकता है, जैसे एक ही लोन कई पर्सन्स को मिल सकता है। समझो बात को, जैसे आप 10 लोगों ने मिलकर बिजनेस लोन लिया, आप अकेले भी वो बिजनेस लोन ले सकते थे, लेकिन आप 10 लोगों ने मिलकर वो बिजनेस लोन लिया है तो वो चलेगा। लेकिन अब वो 10 में से किसी भी और पर्सन को कोई दूसरा लोन वो बैंक नहीं देंगी जब तक वो आप पहला लोन उसको रिपे नहीं कर दोगे। समझ गए इसका मतलब? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लोन आईडी पर काफ़ी सारे, एक लोन जो अकाउंट नंबर है, लोन अकाउंट नंबर, उससे कई सारे कस्टमर्स का रिलेशन हो सकता, उनमें रिलेशनशिप हो सकती, लेकिन एक ही कस्टमर के एक से ज़्यादा लोन अकाउंट नंबर नहीं हो सकते, मतलब उसको बैंक एक से ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो वो हो गया फिर रिलेशनशिप मैनी टू वन, वो हो गया रिलेशनशिप मैनी टू वन। और लास्ट जो रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी सिंपल, 1 to 1 कार्डिनलिटी। 1 to 1 मतलब क्या होगा, यहां पर भी हमने एक एरो दिखा देंगे, ये साइड में भी एक एरो दिखाया और ये साइड में भी एक एरो दिखाया, ये हमारा लोन अकाउंट था। तो एक कस्टमर है सपोज C1, उसको एक ही लोन मिलेगा सपोज BL1, बस। अब वो कस्टमर को ना तो कोई दूसरा लोन मिलेगा और ना ही ये कोई दूसरा लोन और किसी कस्टमर को देंगे। अब इसने सपोज ग्रुप बनाया C1, C2, तो एक ग्रुप लोन भी नहीं देंगे और एक कस्टमर को एक ही लोन देंगे। मतलब यहाँ पे एक लोन अकाउंट नंबर, इट इज रिलेटेड टू ओनली 1 कस्टमर आईडी। अब अगर ये कस्टमर को कोई दूसरा लोन लेना है तो ये बैंक उसको दूसरा लोन देने वाली नहीं है, वो बोलेंगे पहले आप ये लोन कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा, बाद में आप दूसरा लोन लो। आपने बोला कि नहीं, ये कस्टमर ने बोला कि मैं मेरा पूरा बिजनेस बनाता, 25 लोग साथ में मिलते हैं, 10 लोग साथ में मिलते हैं, 5 लोग मिलते हैं और फिर लोन लेता, तो बैंक बोलेंगे नहीं, आप पहले पुराना लोन क्लियर करो, उसके बाद में हम आपको नया लोन देंगे और हम आपको इंडिविजुअल लोन देंगे, हम आपको ग्रुप लोन देंगे ही नहीं, हम सिर्फ आपको एक ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लोन अकाउंट नंबर के साथ एक ही कस्टमर अटैच होना चाहिए, एक ही कस्टमर आईडी, या फिर एक कस्टमर आईडी के लिए सिर्फ एक ही लोन यहाँ पर अवेलेबल हो गए। तो ये जो रिलेशनशिप हो गया, ये कौन सा हो गया फिर 1 to 1। एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। ये ख्याल में रखना, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1 to 1 इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मैनी टू मैनी इट इज़ अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ थोड़ा सा मैनी टू 1 का कंसेप्ट और 1 to मैनी का कंसेप्ट थोड़ा सा प्रॉपरली समझना। ये लगे तो वीडियो को पॉज करना और फिर से एक बार देखना कि बैंक का जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि कौन सा लोन्स किसको दिया। जैसे मैनी टू मैनी में कितने भी कस्टमर्स कितना भी लोन ले सकते, एक कस्टमर के आईडी के ऊपर 10 लोन भी हो सकते अकाउंट, या फिर एक लोन अकाउंट 10 कस्टमर्स का भी हो सकता। तो हो गया मैनी टू मैनी। 1 to 1 में एक ही कस्टमर और उसका एक ही लोन अकाउंट नंबर, बस एक लोन अकाउंट नंबर के साथ एक ही कस्टमर आईडी, या फिर एक कस्टमर आईडी के साथ एक ही लोन अकाउंट नंबर, खत्म किस्सा। मैनी टू 1 में क्या होगा कि कई सारे कस्टमर्स लेकिन एक ही लोन अकाउंट नंबर, मतलब वो ग्रुप लोन की बात आई, कई सारे कस्टमर्स बट एक ही लोन अकाउंट नंबर, यानी एक लोन अकाउंट नंबर जो है वो कई सारे कस्टमर्स का हो सकता, यानी कई सारे कस्टमर्स मिलके एक लोन अकाउंट नंबर सिर्फ उनका एक ही रहेगा, लेकिन
हर कस्टमर का अलग लोन अकाउंट नंबर उसमें नहीं रहेगा। और वन टू मैनी में क्या होगा कि लोन अकाउंट नंबर आपके कई सारे हो सकते हैं लेकिन कस्टमर एक ही रहेंगे। जैसे आप सिर्फ ग्रुप लोन ले सकते हो उसमें, जैसे आपने 10 लोगों ने मिलकर एक लोन लिया तो ठीक है चलेगा आपको, लेकिन आप 10 अलग अलग लोन नहीं ले पाओगे। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बहुत आराम से ख्याल में आ जाता है, वैसे इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बट यू जस्ट टू पे अटेंशन फॉर इट। और ये जो बैंक का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ये फिर से एक बार देखना कि मैनी टू वन, वन टू मैनी, ये क्या चीज़ें रहती। अब इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर जैसे रिप्रेजेंटेशन बताया, तो ये हम तो ऑलरेडी देखे हुए कि हाउ डू रिप्रेजेंट एन एंटिटी। एक रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। वीक एंटिटी तो उसमें आप लोग एक दो रेक्टेंगल बताएंगे, एक के अंदर एक। एट्रीब्यूट को आप रिप्रेजेंट करते हो विथ एन इलिप्टिकल शेप, और की एट्रीब्यूट रहा तो आप उसको अंडरलाइन करते हो, और वीक की एट्रीब्यूट रहा, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हो गया वीक एंटिटी को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। एंटिटी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, एट्रीब्यूट को इस तरह। वीक एंटिटी मतलब आपने दो रेक्टेंगल बनाए। की एट्रीब्यूट मतलब आपने किया कि उसको अंडरलाइन किया, एट्रीब्यूट को उसके अंदर लिखा इलिप्टिकल शेप में और अंडरलाइन किया। वीक के एट्रीब्यूट को आपने डॉटेड लाइन बनाया उसके नीचे। डिराइड एट्रीब्यूट जैसे एज था, आपने डबल आपने डॉटेड लाइन बनाई, इलिप्टिकल डॉटेड लाइन, डॉटेड इलिप्स बनाया। ये डिराइड एट्रीब्यूट। डिराइड एट्रीब्यूट तो हमने वो बताया डेट ऑफ बर्थ, जिस पर से आपको एज मिलेंगी। तो आपने एज अगर है तो एज आपका डिराइड एट्रीब्यूट है, क्योंकि एज आपको किस चीज़ पर से मिली। मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट के लिए आपने डबल लाइन्स बनाया। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा याद रखना। और ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आप शो करते हो डायमंड शेप से। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, डबल डायमंड मतलब उसमें दो बताएंगे। और एसोसिएट एंटिटी मतलब उसमें आप रेक्टेंगल के अंदर जो एंटिटी के अंदर आप रिलेशनशिप बताओगे। एसोसिएट एंटिटी का मतलब क्या होता है, एन एंटिटी इज यूज इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, रिस्ट्रिक्ट्स एन एक्स्ट्रा टेबल पर यूजर। ये कुछ एडिशनल पार्ट है। तो ये जो एसोसिएट एंटिटी है ये छोड़ दो, ये बाकी सारी चीज़ें जो एक बार फिर से समझ लो इसको। ये आपके सिंपल यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये जो आपका सिंपल था ये हो गया एंटिटी, ये सिंपल हो गया एट्रीब्यूट। उसके बाद में वीक एंटिटी में डबल लाइन से की, और उसके बाद में एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट में अंडरलाइन है आपका एट्रीब्यूट। उसके बाद में वीक की एट्रीब्यूट में आपका डॉटेड लाइन है इन इलिप्टिकल में, और डिराइड एट्रीब्यूट में आपका डॉटेड इलिप्स है। मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट में डबल लाइन्स है। रिलेशनशिप ये आपने डायमंड शेप से बताया, और आइडेंटिफाई रिलेशनशिप ये आपने डबल डायमंड बताया, दो शेप्स बताया, और एसोसिएट एंटिटी लाइकवाइज। सो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद।